آئے ہم اکٹھے خدا کے کلام کا مطالعہ واعظ کے عنوان باعث برکت الفاظ کے تحت کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ آئے ہم یوحنا کی انجیل باب 3 کی طرف جاتے ہیں۔ یوحنا باب 3 آیت 3۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنی جسمانی پیدائش کو پہلی پیدائش کے طور پر دیکھیں تو یوحنا باب 3 میں ہماری روحانی پیدائش کو نئے سرے سے پیدا ہونے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ ماضی میں ہم وہ لوگ تھے جو اکثر آسانی سے غصے میں آ جاتے تھے، شکایت کرتے ہوئے غصہ نکالتے تھے اور دوسروں کے ساتھ منفی رویہ رکھتے تھے۔ جب ہم پریشان ہوتے تھے تو ہم اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے اور ہم لوگوں پر سختی سے دباؤ ڈالتے تھے۔ کیا نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب دوسری بار پیدا ہونا نہیں ہے؟ اس لیے اب ہمیں ایسے لوگوں کے طور پر نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے جو خدا کے کلام کی قوت سے پاک ہو کر اور شفا پا کر مزید تلخ، بدتمیزی یا حسد کی باتیں نہیں بولتے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ایسے الفاظ بولیں جن سے دوسروں کی حوصلہ افزائی ہو، دیکھ بھال ہو، حمایت کریں، ترقی دیں اور تقویت دیں، تاکہ ہم سب ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں باحفاظت اپنے ابدی آسمانی گھر تک پہنچ سکیں۔ اگر ہم ایسے لوگ بن جائیں جو صرف اس طریقے سے بول سکتے ہیں تو خدا ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شامل نہیں کریں گے جو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ یعنی جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہ ہم سے کہیں گے تمہاری زندگیاں واقعی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ہیں، کیا وہ نہیں کہیں گے؟ بعض اراکین ایسے ہیں جو نئے سرے سے پیدا ہونے کی تعلیم کو سرسری لیتے ہیں، حالانکہ انہیں یقین ہے کہ فسح اور سبت کا دن نہ ماننا قطعی طور پر ناقابل قبول ہے اور سنگین نتائج کا باعث بنتا ہے۔ آپ سب خدا کے کلام کا کوئی حصہ ایسا نہیں جسے سرسری لیا جائے۔ ہم متی باب 5 آیت 20 سے دیکھتے ہیں۔ متی باب 5 آیت 20۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فریسیوں اور فقیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ کیا یہ بھی خدا کی بخشی شریعت نہیں ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے زور دینے کے لیے ہرگز نہیں بھی شامل کیا ہے۔ ہم سب کو آسمانی فرزند بننے کی ضرورت ہے جو خدا میں نئے لوگوں کے طور پر نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں اور آسمانی لوگوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ کیا ہمیں ایسے لوگوں کے طور پر نہیں پہچانا جانا چاہیے جو اپنے قول و فعل اور رویوں میں دنیا کے لوگوں سے مختلف ہیں؟ ہم نیچے دیے گئے حوالے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آیت 21۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کیا کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا، پاگل عبرانی میں توہین ہے، وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ آپ کو اور مجھے وہ لوگ بننا چاہیے جو ہرگز صیون میں کسی کو ایسی باتیں نہ کہیں۔ کیا ہمیں نہیں بننا چاہیے؟ ایسے الفاظ ہیں جو برکات کا باعث ہیں، خدا کو متاثر کرتے ہیں اور ہمیں آسمان کی ابدی بادشاہی میں داخل ہونے دیتے ہیں۔ تو پھر ہمیں ان کو کتاب مقدس سے سیکھنا چاہیے اور مسلسل ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ کا شکریہ، مجھے معاف کیجیے، یہ میری غلطی ہے۔ میں اب سے زیادہ کوشش کروں گا اور بہتر طور پر کروں گا۔ وہ الفاظ ہیں جو ہمیشہ صیون میں ایک بنیادی عمل کے طور پر استعمال ہونے چاہیے، کیونکہ یہ نقصان کا باعث نہیں بنتے۔
बल्कि इसकी बजाय दूसरों का एहतराम करते हैं। हमें मुसलसल ये कहना सीखना चाहिए कि हम मिलकर हम मांगे और इत्तेहाद से काम करें। यूहन्ना बाब 3 में यसू ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। और मत्ती बाब 5 में उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। आइए इसकी तस्दीक पहले थिस्सलुनीकियों बाब 5 से भी करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों बाब 5 आयत 7। क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम किसके हैं? दिन के हैं, ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का खोद पहनकर होशियार रहें। क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदामंद यसू मसीह के वसीला से निजात हासिल करें। आयत 15 की तरफ जाते हुए मालूम करते हैं कि निजात पाने वालों को हमेशा कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। आयत 15 में यह लिखा है कि खबरदार कोई किसी से बदी ना करे, बल्कि हर वक्त हमें क्या करने की कोशिश करनी चाहिए? नेकी करने के दरपेर रहो, आपस में भी और सबसे हर वक्त खुश रहो। हमें और क्या करना चाहिए? बिला नागा दुआ करो। हमें और क्या करना चाहिए? हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यसू में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। ये वो है जो किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है। जिंदगी में आगे बढ़ते हुए ऐसे लम्हात आते हैं जब हम गुस्सा या नाराजगी महसूस करते हैं, और कई हालात ऐसे होते हैं जिनमें हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते। ताहम हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। कुछ जज्बात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक दुनिया से है। जब हम दुनियावी अंदाज में जिंदगी गुजारते हैं तो हम आसानी से बुड़बुड़ाहट, शिकायत, रंजिश, तनकीद, हसद, जलन, गुरूर और शेखी मारने में मुब्तला हो जाते हैं। खुदा में नए सिरे से पैदा होने वाले लोगों को इन सब चीजों के बारे में क्या करना चाहिए? हमें इन सब से छुटकारा पाना चाहिए। ऐसे लोग कहां जाएंगे? वो आसमान पर जाएंगे। पहले थिस्सलुनीकियों बाब 5 आयत 15 में यह कहा गया है कि खबरदार कोई किसी से बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दरपेर रहो, आपस में भी और सबसे। हमें इस तरह से जवाब देने और बोलने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि हम दूसरों पर मुस्बत असर डाल सकें। अगरचे अचानक तब्दीली मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर हम पहले 10 बार शिकायत करते थे तो इसे 5 पर लाएं, फिर 2 पर और बिल आखिर बिल्कुल खत्म कर दें, ताकि हम सब वो बन जाएं जो आहिस्ता आहिस्ता मसीह में तब्दील हो जाएं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा खुश रहना सीखना चाहिए। जब हम खुश होते हैं तो हम शिकायत नहीं करते, सही? हमें तमाम हालात में क्या करना चाहिए? जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हम कभी शिकायत नहीं करते। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। ये खुदा की मर्जी है। अगर आपका शोहर, बीवी या बच्चे कुछ ऐसा कहें जिससे आपको बेचैनी महसूस हो तो बेहतर होगा कि आप इस ज़हनियत के साथ जवाब दें, मैं समझ सकता हूं कैसा हो सकता है, और उनके साथ आसमानी लोगों के तौर पर नरमी से पेश आएं। मेहरबानी से याद रखें कि ऐसा करने से आसमान में बरकत 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार और हत्ता कि 1000 बार जमा होंगी। क्या ये सब भी खुदा का हुक्म नहीं जो हमें दिया गया है? अगरचे ये खुदा की मर्जी है, पर क्या होगा अगर हम हर रोज गुस्से में हों, लोगों से बहस करें, हर रोज सख्त अल्फाज बोलें और हमेशा अपने जज्बात को तरजीह दें, खा दूसरों को अच्छा लगे या ना लगे? फिर हम अहमकाना जिंदगी गुजारेंगे जहां हम मुसलसल
पहले थिस्सलुनीकियों बाब 5 में दर्ज कवानीन को ये जानने के बावजूद कि ये खुदा की मर्जी हैं, मुसलसल तोड़ेंगे और हर चीज की नाफरमानी करेंगे। हम इफिसियों बाब 4 आयत 22 से देखते हैं। तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को हमें क्या करना सिखाया गया था, उतार डालो, जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उस हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। बस हमें क्या करना चाहिए? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उसे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई। आयत 31। हर तरह की हमें क्या दूर करना चाहिए? तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरोगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाएं। खुदा हमें हुक्म देते हैं कि हम इनसे छुटकारा पाएं, लेकिन बाज लोग इन्हें पोशीदगी में जारी रखते हैं और तर्क नहीं करते। अगर इसे तर्क करना खुदा का हुक्म है, तो ऐसा करना खुदा की शरीयत की फरमाबरदारी है। क्या आज कोई ऐसा है जिसने अपनी जेब में कुछ छुपा रखा हो और सोचा हो कि ये फेंकने के काबिल नहीं है? आज इबादत खत्म होने के फौरन बाद हम अपनी जेबें उलटकर ये सब चीजें निकाल फेंकें। खुदा कहते हैं हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाएं। हम आयत 32 की तरफ जाते हैं। हमें एक दूसरे के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? और एक दूसरे पर मेहरबान हो। और हमें और क्या करना चाहिए? नरम दिल हो। हमें गुनाहगारों पर रहम करना चाहिए। अगर वो आखिर तक सच्चाई में बर्दाश्त ना करें, तो जहन्नम की आग में जाएंगे। और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। बाब 5 आयत 1। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। आसमान की अपनी बादशाही के लोगों के तौर पर हम सब मसीह की जलाली सूरत में बदल जाएंगे और खुदा की बादशाही में अब तक हमेशा की जिंदगी और बरकत का लुत्फ उठाएंगे। तो फिर क्या हमें इस ज़मीन पर दीनदारी की रियाजत नहीं करनी चाहिए? क्या इस पर अमल ना करना ठीक होगा? किताब मुक़द्दस में खुदा के तमाम कलमात, फरमानो ज़वाबत और कवानीन हैं, जिनका हमें एहतराम करना और उन पर अमल करना चाहिए। इसलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि इसे मानना मेरे लिए कतई तौर पर नामुमकिन है। सब कुछ मानना चाहिए। हमें इन सब बातों पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। जब यीशु पांव धोने की रस्म अंजाम दे रहे थे, तो पतरस ने कहा, ऐ खुदामंद, आप मेरे पांव हरगिज ना धोने पाएंगे। तो फिर यीशु ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, अगर तुमने इस लम्हा से मेरे हुक्म पर अमल ना किया, तो तुम मेरे साथ शरीक ना होगे। आप सब, खुदा का कलाम हमारे लिए बेमानी नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? लिहाजा हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, बिला नाका दुआ करनी चाहिए और हर तरह के हालात में शुक्रगुजारी करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सयून में सब भाई और बहनें वो बन जाएंगे जो अपनी पुरानी इंसानियत को उतार कर नई इंसानियत में तश्कील पाते हैं, ताकि ये साल ऐसा साल होगा जब हम पूरे एतमादी से खुदा के हजूर ऐलान करेंगे कि अब मैं आसमान में दाखिल होने को तैयार हूँ। गिनती की किताब में 12 जासूसों ने मुस्बत और मनफी बातें की। उनमें से 10 ने मनफी बातें की। उन्होंने ऐसी बातें की
کہ ہم دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنعان کو فتح نہیں کر سکتے۔ تاہم ان میں سے دو نے ایسی باتیں نہیں کی تھیں۔ اس کی بجائے انہوں نے کہا، اگرچہ وہاں رہنے والے لوگ بڑے قداور ہی کیوں نہ ہوں، وہ تو ہماری خوراک ہیں، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ آپ سب، یہ پہلے ہی طے شدہ تھا کہ کون ملک کنعان میں داخل ہو سکتا ہے اور کون ملک کنعان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بات والا گروہ اندر کیوں نہ آ سکا؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ کس طرح ایسی باتیں کہیں جو برکات کا باعث ہیں۔ ایمان کی باتیں ہمیشہ برکات کا باعث ہوتی ہیں۔ وہ باتیں جو خدا کو ترجیح دیتی ہیں اور انہیں ہماری روحوں کا نجات دہندہ مانتی ہیں، ہمیشہ برکات کا باعث ہوتی ہیں۔ یشوا اور کالب کو خدا نے یقین دلایا کہ یقیناً صرف تم دونوں ملک کنعان میں داخل ہوگے۔ تاہم 10 دیگر جاسوسوں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ بڑبڑانے اور رونے میں شامل ہوئے، خدا نے اعلان کیا کہ تم ملک کنعان میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ آپ سب آئیں احتیاط سے جائزہ لیتے ہیں کہ کتاب مقدس کے کون سے الفاظ برکات کا باعث ہیں اور کون سے الفاظ لعنت کا باعث ہیں۔ انجیل کی کتاب میں پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جو کوئی اپنے بھائی یا بہن کو پاگل کہے گا وہ آسمان میں داخل نہ ہوگا بلکہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آپ سب، آپ کو اسے سرسری نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں اسے سرسری نہیں لینا چاہیے۔ اگرچہ یہ یسوع کے کہے گئے الفاظ ہیں، پر یہ محض انسانی فطرت کے متعلق ہیں۔ یہ بھی خدا کی جانب سے ایک بہت اہم معیار کے طور پر مقرر کیا گیا ہے جو ان لوگوں کو الگ کرتا ہے جو آسمان پر جائیں گے اور وہ جو جہنم میں جائیں گے۔ ہمارے سیون کے خاندان کے ہر رکن کے حوالے سے خدا ہمیں کس کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتے ہیں؟ جو کچھ تو نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ کیا، وہ کس کے ساتھ کیا؟ یہ لکھا ہے کہ تو نے میرے ساتھ کیا۔ اس کی تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ تم نے خدا کے لیے کیا۔ جب ہم اپنے سب سے چھوٹے کو سہارا دینے اور مضبوط کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کے الفاظ بولتے ہیں تو ہم خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیں ہم اس کی تصدیق کتاب مقدس سے کرتے ہیں۔ ہم اکٹھے متی باب 25 آیت 40 سے دیکھتے ہیں۔ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ یہاں لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہیں۔ دائیں طرف کا گروہ جسے یسوع برکات دیتے ہیں اور بائیں طرف کا گروہ جس پر وہ لعنت اور سزا کا حکم کرتے ہیں۔ تو پھر کیا یہ لوگ واقعی اپنی روزمرہ زندگیوں میں خدا کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ انہوں نے خدا کے ساتھ براہ راست ایسا نہیں کیا تھا۔ پھر بھی خدا پر ایمان رکھنے والے ہر چھوٹے بچے کے ساتھ جو انہوں نے کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آخر کار یہ فیصلہ کرنے کا ایک اہم معیار بن گیا کہ آیا وہ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے یا جہنم میں۔ پڑھنا جاری رکھتے ہیں۔ آیت 33 میں یہ لکھا ہے کہ اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اسے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دے کر کھانا کھلایا یا پیاسا دے کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دے کر گھر میں اتارا یا ننگا دے کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دے کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ضرورت مند بھائیوں اور بہنوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ انہیں کیسے سہارا دینا، حوصلہ دینا
ताकत देना और तसल्ली देना है खुदा के लिए करने के मुतरादिफ है। आइए हम आयत 41 देखें। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलौनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। दूसरे अल्फाज में क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो जहन्नम की आग में फेंके जाएंगे? आइए हम आयत 42 देखते हैं। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की? उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया, और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। इससे यह तयन होता है कि कौन आसमान में जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा। हम सोचते हैं कि यह नए अहद का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम फसा, सबत का दिन और नए अहद की खुदा की शरीयत मानते हैं। आप सब नए अहद के तमाम पहलुओं को बिल आखिर हमारे किरदार की तशकील करनी चाहिए। अपने गुनाहगार फर्जंदों को माफ करने की गर्ज से क्या खुदा ने अपना गोश्त नहीं दिया और अपना खून नहीं बहाया ताकि हम पर अपनी मोहब्बत को जाहिर करते हुए हमें मौत से निकालकर अब्दी जिंदगी की राह पर ले जाएं? जब भी हम फसा की रोटी खाते और फसा की मै पीते हैं तो हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें गुनाहगारों के लिए खुदा की मोहब्बत और कुर्बानी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे भी अपने भाइयों और बहनों के लिए इस किस्म की जिंदगी गुजारनी है। इस किस्म की रूह को नए अहद में जिंदा रहना चाहिए। वाकई हम सबको सयून के मुबारक फर्जंद बनना चाहिए, जो हमारे माहौल में बरकत, खुदा के फजल और खुशखबरी के मौजूदात का बायस बन सकते हैं। जैसा कि यह कहा गया है कि जब तक तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। हमारे अमाल, हमारे अल्फाज और हमारी जहनियत को वाकई आसमानी लोगों यानी फरिश्तों की मानद बनना चाहिए। खुदा के किरदार के महज 50 या 60% तक पहुंचने की बजाय हमें फरिश्ते बनने की कोशिश करनी चाहिए जो खुदा के किरदार की मुकम्मल अक्कासी करें। यह कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपसे कह रहा हूं, बल्कि खुदा चाहते हैं कि हम ऐसी तब्दीलियों से गुजरें। हमारे सयून के खानदानी अराकीन में आइए हम हमेशा वो बातें कहें जो बरकत का बायस हों। हमें भी ऐसे अल्फाज बोलने की आदत डालनी चाहिए। अगर खुदा ने हमें कनान देने का वादा किया है तो हमें जवाब देना चाहिए आमीन, और कहना चाहिए कि वो तो हमारी खुराक है। ताहम अगर हम शिकायत पर आमीन कहें तो हम सबका क्या बनेगा? क्या हम सबका अंजाम हलाकत और मौत का सामना करना नहीं होगा? इसीलिए पहले कुरिन्थियों बाब 10 में बार बार ताकीद की गई है कि ना बुड़बुड़ाओ। बाज़-औक़ात हमारी जिंदगियों में रुकावटें आती हैं क्योंकि इसमें खुदा का अजीम मकसद पोशीदा होता है। बाज़-औक़ात अगरचे हम ऐसे नताइज की उम्मीद रखते हैं जो बड़ी कामयाबी का बायस हों, लेकिन हमें नुकसान का सामना भी हो सकता है। खुदा हम में से हर एक के मुआफिक मुख्तलिफ हालात फराहम करते हैं। ताहम बारीक पीनी से मुआयना करने पर हमें क्या मिलता है? आखिर में हमें एहसास होता है कि खुदा ने हमें बरकत देने के लिए उस राह पर चलाया था। याकूब का 11वां बेटा यूसुफ, जो कि ईमान का जज था, उसकी जिंदगी बहुत से उतार चढ़ाव से भरी थी। यूसुफ को उसके भाइयों ने मिस्र में गुलामी के लिए बेच दिया। जब वो पोतीफार के घर में नौकर था तो उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया और उसे कैद में भेज दिया गया। कैदखाना में रहते हुए ख्वाबों की बेहतरीन ताबीर करने के बायस
फिरौन ने उसे चुना और वो मिस्र का हाकिम बन गया, जो सब कुछ संभालता था। उसके हर कदम पर खुदा उसके साथ थे। खुदा ना सिर्फ अच्छे वक्तों में उसके साथ थे, बल्कि उस वक्त भी जब उसे गैर मौजूद हालात का सामना था। खुदा सब्र के साथ इंतजार करते रहे जब तक कि इस्राएली एक बड़ी कौम ना बन गए और इस अमल के जरिए मिस्र में एक मजबूत रियासत कायम हुई। आपको हमेशा इस बात को कबूल करना चाहिए कि उतार चढ़ाव हमारी रोजमर्रा जिंदगियों का हिस्सा हैं। शायद आप सोचें सिर्फ उस रुकन को ही बरकत मिलती हैं, उसकी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही है, मुझे ही क्यों इतनी मुश्किलात का सामना है, या बाकी सब कुछ नजर आते हैं। खुदा पर ईमान रखने के बावजूद मैं ही क्यों खुदा की बरकत से महरूम हूं। ऐसे ख्यालात को तर्क कर देना चाहिए। आखिर में खुदा हम सब के लिए क्या करते हैं? आखिर में वो हमें बरकत देते हैं, यानी जब तक हम ये बरकत हासिल ना कर लें, खुदा हमें ऐसे अमल से गुजारते हैं जहां हमें रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, मुश्किल हालात बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं, नुकसान का तजुर्बा हो सकता है और बाज़ औक़ात बड़ी कामयाबी के लम्हात भी आते हैं। चाहे हम पुरअमन रास्तों पर हों, मुश्किल रास्तों पर और लाखों दिगर हालात में हों, खुदा हमेशा हमारे साथ हैं। अगरचे हम मौत के साये की सबसे तारीक वादी से गुजर रहे हों, खुदा क्या करते हैं? क्या वो नहीं कहते कि वो हमारे साथ होंगे, हमारा नूर होंगे और हमारी लाठी होंगे? खुदा हमें आसमान की अब्दी बादशाही में शाही काहिनों का फिरका होने के जलाली रुतबे पर फायज करने के लिए हमें इस जमीन पर जिंदगी के कई अक़साम से गुजारते हैं। जब भी हमें जिंदगी के ऐसे तजुर्बात का सामना हो तो हमें मनफी तौर पर यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ मैं ही हूं जो बरकत नहीं पा रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस बात पर गौर करें जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कही थी, ये सब खुदा ने किया था, ये तुम नहीं थे जिन्होंने मुझे मिस्र में गुलामी के लिए बेचा। उसने उनसे कहा कि अपने आप को इल्जाम ना दो, क्योंकि सब कुछ खुदा की अजीम दूरंदेशी के तहत हुआ था। क्या ये किताब मुक़द्दस में दर्ज नहीं है कि उसने अपने भाइयों से नफरत नहीं की, बल्कि उन्हें तसल्ली दी जो उसे बेच गए थे? चूंकि बाप और माँ अपने अजीम मंसूबे के तहत आसमान की बामानी राह पर हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, तो चाहे हमें कैसी भी जिंदगी दी जाए, ये आसमान के सफर का हिस्सा है। अगर ऐसे हालात जहन्नम की राह पर दरपेश हों तो बुड़बुड़ाना और शिकायत करना माकूल होगा, लेकिन चूंकि ये आसमान की राह पर होते हैं तो क्या बुड़बुड़ाने या शिकायत करने की जरूरत है? हमें खुश रहना चाहिए, हमें शुक्रगुजारी से मामूर होना चाहिए। हम सबको वो बनना चाहिए जो हर रोज खुदा को हम्दो जलाल पेश करते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि सयून हर रोज बरकत का बाइस बातों से मामूर होगा। मैं आज का वाज खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।